Good morning, children. Today we will start indefinite integral. Indefinite integral. इंटीग्रल को हम मेन इसका है एंटी डेरिवेटिव से बना है इंटीग्रल. एंटी डेरिवेटिव. ओके, means reverse process, inverse process of derivative is called integration. Only from this definition one thing is very much clear. D by dx of fx plus k, d by dx derivative of fx plus k is only f dash x. The symbol will be f dash because derivative of fx and derivative of constant, derivative of constant is 0. So fx का derivative f dash x. Then the reverse process means the integral of f dash x is fx plus k. Integral of f dash x is fx plus k. Here k is called constant of integration. K is called constant of integration. Okay, this is essentially to do. एक एग्जाम्पल से हम देखें कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का भी डेरिवेटिव 2x. तो इट इज वेरी मच क्लियर कि एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट और माइनस एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में भी निगेटिव तो माइनस अपने आप हो जाएगा, इज 2x ओनली. So integral of 2x is not only x square. It may x square plus 1, may x square plus 5, may x square minus 7, may x square plus 3 by 2, maybe x square plus sin alpha, maybe x square plus 10 alpha or whatsoever. Okay? So this is very important कि we will write in each and every integration plus k or c or lambda, whatever the symbol you want to use, that will be called constant of integration. By using this definition, all the corresponding formula of derivative may be treated as integral formula. उसकी हेल्प से हम इंटीग्रल का फार्मूला बना सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ x to the power n plus 1 is how much? n plus 1 x to the power n. X power n. So since n plus 1 is constant, so it can be getting from that side also. Corresponding integral formula, integral of x to the power n is how much? X to the power n plus 1 upon n plus 1 plus k, where k is a constant. डेरिवेटिव ऑफ x to the power n plus 1 लगा दिया फार्मूला डेरिवेटिव का n plus 1 x to the power n. So corresponding integral of f dash x, integral of this one is x to the power n plus 1. So integral of x power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1. And constant of integration is essentially. But this will be applicable n is not minus 1. Why? If n is minus 1, then certainly it comes a constant. X power 0. One thing. Secondly, in this formula, why not applicable for n is minus 1? If n is a minus 1,
then it comes 1 and this comes 0. Denominator cannot be 0 for any of the function. So this is not applicable for n is minus 1. Otherwise, n may be any real number except minus 1. This formula may be applied. X to the power minus half का integral, x to the power minus half का integral, x to the power minus half plus 1 upon minus half plus 1, that is x power half upon half, that is 2x power half, 2 root x. Otherwise, integers, then very easy. X power 5, x power 6 by 6, x power 10, x power 11 by 11, x power minus 7, x power minus 6 upon minus 6. This may be applied. N may be fraction, maybe the positive integer, maybe the negative integer, but it cannot be minus 1 only. For minus 1, one very important thing, d by dx of log x, derivative of log x, that is 1 by x, means x power minus 1. Means log x का derivative है x power minus 1. So integral of x power minus 1 is log x. Integral of x to the power minus 1 dx, that is 1 by x dx, is equal to log x plus k. Means for whatever the power of x, x power n, we are getting both formula. If n is a minus 1, then its integral is log x. Other than minus 1, then x power n plus 1 upon n plus 1 plus k. Next, derivative of e power x is a e power x. So the corresponding formula is integral of e power x is also e power x. Derivative of a power x, a to the power x log of a, that is base e. Log what I am talking means base e. Sometimes ln may be written log x base e, in a short somewhere it is written lx, natural log x. Again log a base e is constant, so it will be going on this side. So a power x dx, integral of a power x is, with respect to x is a to the power x upon log of a base e plus k. Always I am using k as a constant of integration. It is very essential. Sometimes in the board examination, they may deduct the marks. Half marks is longer question. They will deduct half mark. So it is very difficult for you. वैसे, however, I am always as a subject expert telling to the examiner, you will avoid to this one. If K is not written, then also you may give the full award. But sometimes our head examiners or examiners are telling to me, no sir, certainly the mark to be deducted. I am helpless for that time. तो ऐसी स्थितियां न आए. आप इनिशियल स्टेज से यदि अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब भी प्लस के लिख या हैबिट बना दे. So you have seen 4 formula I have written for the powers. Exponent में x power n का integral, x power n plus 1 by n plus 1 when n is not minus 1. When n is a minus 1, then x power minus 1 is x power minus 1 का integral log x. So for any power of x, these two formula. A power x का integral a power x upon log a base e. E power x का integral e power x. Now, come on trigonometrical. Since derivative of sin x is cos x, so I can say integral of cos x is a
sin x plus constant of integral. Derivative of cos x minus sin x. So integral of sin x minus cos x plus k. Derivative of tan x is a sec square x. So I can say integral of sec square x is a tan x. Derivative of cot x minus cosec square x. So I can say the integral of cosec square x minus cot x. Derivative of sec x is a sec x tan x. So integral of sec x tan x is sec x plus k. Derivative of cosec x is minus cosec x cot x. So I can say the integral of cosec x cot x is minus cosec x plus k. This sec x tan x may be written, if I will write it sin x cos x, 1 by cos x sin x by cos x, then it comes sin x upon cos square x. You may remember to this one also. In the similar way here, cos x by sin square x, 1 by sin x, cos x by sin x, so finally it comes cos x by sin. ये दोनों not very much used, but somewhere in the questions it may be given. इंटीग्रल ऑफ sin x cosec स्क्वायर x, अरे cos स्क्वायर x, हम परेशान हैं, लगते हैं cos x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन से लगाने, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, you can remember it directly, then you can do it immediately. The answer is sec x. Okay, these 6 corresponding formula for corresponding to the derivative. Now again some more formula. So remember 4 are there, 6 these. Derivative of log sec x, just we see. Derivative I have written 1 by sec x into sec x tan x. डेरिवेटिव में आप पढ़े हैं इस बात को. सो फाइनली इट कम्स tan x. sec x कैंसिल. Derivative of log sec x is a tan x. Means I can say integral of tan x is log sec x plus k, or can be written minus log cos x plus k. Log sec x is a log 1 upon cos x. Log 1 upon cos x, log 1 minus log cos x. Or I can say sec x is a cos x power minus 1, log m power n is n log m. In the similar way, derivative of log cosec x (1 by cosec x) into minus cosec x cot x it comes minus cot x. Means log cosec x का derivative minus cot x. So I can say derivative of cot x is integral of cot x minus log cosec x plus k.
or I can say log sin x plus k. Log sin x plus k. Okay? Two more derivative. Log sec x plus tan x. I am not going to differentiate it. 1 upon sec x plus tan x into derivative of this one, sec x tan x plus sec square x. Sec x is common. Sec x plus tan x cancel हो जाएगा. So I can say derivative of log sec x plus tan x is a sec x. So integral of sec x is log sec x plus tan x plus k. It is same as log tan pi by 4 plus x by 2. It is same as log tan pi by 4 plus x by 2. देखिए हाउ हम दोनों तरह से कर सकते हैं. या तो इसको हम tan pi by 4 plus x by 2 कर लें, या तो उसको डिफरेंशिएट करें, फिर यही आ जाएगा. जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे हमको तुरंत वही चीज मिल जाएगी. हम sec x plus tan x को tan pi by 4 plus x by 2 प्रूव कर दे रहे हैं. sec x plus tan x 1 by cos x sin x by cos x, it comes 1 plus sin x upon cos x. This is 1 plus cos pi by 2 plus x. 1 minus cos pi by 2 plus x. And cos x may be written sin pi by 2 plus x. Cos pi by 2 plus theta is a minus sin theta, so it comes 1 minus cos pi by 2 plus x. It comes sin pi by 2 plus theta is a cos pi by 2 plus cos x. Now 1 minus cos theta is a 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2. Half of this angle, that is pi by 4 plus x by 2 whole upon sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 sin pi by 4 plus x by 2 into cos pi by 4 plus x by 2. 2 cancel, 1 sin cancel, sin theta upon cos theta, that is tan theta, it comes tan pi by 4 plus x by 2. Means I can say sec x plus tan x is same as tan pi by 4 plus x by 2. So sec x plus tan x may retain as tan pi by 4 plus x by 2 also. Hence, integral of sec x is a log sec x plus tan x as well as log tan pi by 4 plus x by 2. हम कब कौन सा यूज करें? जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो दोनों सही है. यहां तक ले आए, दैट्स ओवर. लेकिन while we are, let us suppose the question is prove that, somewhere the question is prove that integral of this is this one. वहां हमारे दिमाग में इमीडिएट होना चाहिए कि whatever we want to prove, if the proving side or right side is a half of these angles, it means this one will be used. The same angle is there, then this will be used. So it is very essentially to remember integral of sec x is log sec x plus tan x as well as log tan pi by 4 plus x by 2. आप देख रहे हैं उसमें half of this angle is involved and here the same angle is involved, so no problem at all. Clear? Otherwise I can differentiate this one. We will get sec x, derivative of log
tan pi by 4 plus x by 2। देखिए log t, the derivative is 1 by t, 1 upon tan pi by 4 plus x by 2 into the derivative of tan pi by 4 plus x by 2, that is tan theta। tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, बट थीटा इज अगेन डेरिवेटिव, पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 का हाफ। साइन कास में कन्वर्ट कर देंगे, साइन बाई कास तो कास ऊपर हो गया, कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपान साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 1 अपान कास स्क्वायर, 1 अपान कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये हाफ हमने यहां कर दिया। 1 कास इज कैंसिल, 2 साइन ए कास ए, 2 साइन ए कास ए, साइन 2a, साइन 2a, 2 इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 प्लस एक्स, 1 अपान, दैट इज 1 अपान कास एक्स कम सेक एक्स। तो दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज डायरेक्टली टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, और we will differentiate log 10 pi by 4 plus x by 2 and getting sec x। so देखिए ये कई जगह हमको रिवर्स में भी यूज आएगा। यदि कोई डायरेक्ट पूछे 10 pi by 4 plus x by 2 का डेरिवेटिव, तो बिना डेरिवेटिव के हम लिख देंगे sec x। y log 10 pi by 4 plus x by 2 का डेरिवेटिव sec x होगा। y sec x का इंटीग्रल log 10 pi by 4 plus x by 2 है। The one more, derivative of log cosec x plus cot x, that is 1 upon cosec x plus cot x, log cosec x plus cot x, 1 अपान कोसेक एक्स प्लस काट एक्स माइनस कोसेक एक्स काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा हमारा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स। सो आई कैन से इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इज, देखिएगा इसके 3 बनाऊंगा, माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस काट एक्स, ठीक है, आर प्लस के, इट में भी log 10 x by 2 ओनली प्लस द सेम रीजन। हाफ एंगल चाहिए तो log 10 x by 2, यदि सेम एंगल चाहिए तो माइनस log कोसेक एक्स प्लस काट एक्स। इसको हम log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स भी लिख सकते हैं। देखिएगा दोनों चीजों से ज्यादातर यूज ये वाला होता है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव में कई बार देखे हैं कि log कोसेक एक्स प्लस काट एक्स विद माइनस साइन आया। पता चला ये नहीं दिखा ऑप्शन में माइनस log कोसेक एक्स प्लस काट एक्स था, अरे नहीं ये तो कहां होगा, तो हमें याद है माइनस काट एक्स होता है। भाई कोसेक एक्स प्लस काट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस काट एक्स इज ऑलवेज 1। cosec square x minus cot square x which is 1 means they are reciprocal to each other. Cosec x plus cot x and cosec x minus cot x are always reciprocal to each other because its product is 1. Minus लगा है, it means power minus 1. Reciprocal of this, it will become the cosec x minus cot x. यहां भी हम लिख सकते थे minus log sec x minus tan x means sec x plus tan x and sec x minus tan x are reciprocal to each other because the product of these two is sec square x
minus tan square x, which is 1. So you could remember sec x plus tan x and sec x minus tan x are reciprocal to each other. Sec x plus tan x may retain 1 upon sec x minus tan x, or sec x minus tan x retain as 1 upon sec x plus tan x. In the similar way, cosec x plus cot x is 1 upon cosec x minus cot x, or cosec x minus cot x is 1 upon cosec x plus cot x. तो these 4 more formula. log में एक बात हरदम ध्यान दें कि we use mod of that. Why? log of negative is imaginary number, complex number, so no defined. log x is defined only x greater than 0. मीन्स यहां पर x की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या तो फोर्थ में होगी, क्योंकि सेक माइनस एक्स। यहां पर x की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। तो इन जनरल बेटर है कि हम मॉड लगाएं, वहां हमने लगाया नहीं, लेकिन आप ध्यान रखें लॉग में ऑलवेज मॉड यूज होगा। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुल कितने फार्मूले डिराइव किए? 10। 6 पहले था, 4 मीन्स इसमें आप देखेंगे, इसको हम सेपरेटली याद करने के लिए बाइफरकेट करूं तो ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल का इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस कास एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कास एक्स डीएक्स साइन एक्स डीएक्स प्लस के इंटीग्रल ऑफ tan एक्स। यही गलती होती, पता चला पूछा इंटीग्रल था, डेरिवेटिव लिखा गया log sec x और माइनस log cos x। इंटीग्रल ऑफ cot x log sin x। इंटीग्रल ऑफ sec x log sec x प्लस tan x और log tan pi by 4 plus x by 2। इंटीग्रल ऑफ cosec x log cosec x माइनस cot x और log tan x by 2। all these 6 trigonometrical ओके। देखिए हमने 10 बताया, 10 है, आउट ऑफ दैट 6 तो ये हो गए। 4 कौन से हैं? 2 स्क्वायर वाले हैं। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan एक्स, वाई tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स था। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स, ये 2 और बन गए स्क्वायर वाले। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। तो 6 and 2 माने 7th लिया हमने इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan एक्स, एंड 8 लिया इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस के। 2 है प्रोडक्ट वाले, 2 है प्रोडक्ट वाले। कौन कौन? सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स। ओके, तो 10 देखिए 4 पहले थे, 10 ये हो गए। 6 डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल के, 2 स्क्वायर वाले और 2 प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में है सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल। स्क्वायर में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल एज वेल एज कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। तो आपने देखा कि 10
n+4 40। और देखिए 3 और बनाएंगे हम। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x as well as derivative of minus cos inverse x is a 1/√1 minus x square। साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रल ये है, डेरिवेटिव है। cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मींस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos इनवर्स x इज आल्सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मींस इसके लिए करेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आइदर साइन इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स x। यहां पर बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इसका मतलब तो साइन इनवर्स x और माइनस cos इनवर्स x सेम है। नो, ये के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि हम साइन इनवर्स x को लिख दें π/2 माइनस cos इनवर्स x, तो माइनस cos इनवर्स x और π/2 प्लस के, π/2 इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट, सो π/2 प्लस के सम ऑफ द टू कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, उसको मैंने k लिखा। आप अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां k डैश कर सकते हैं। दोनों k सेम नहीं है। सो मेनी टाइम आवर स्टूडेंट आर आस्क्ड, सर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x। नो भाई, ये इक्वल नहीं है। हम इससे भी ये डिराइव कर सकते हैं, इससे इसको ला सकते हैं। यहां पर हम cos इनवर्स x को लिख दें π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो आ जाएगा। देख रहे हैं ना, तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो तो के डैश, लेकिन हमको तो एक ही आंसर लिखेंगे उस समय, तो हम के ही लगा दें। इन द सिमिलर वे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot इनवर्स x, दोनों का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो आई कैन से अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आइदर tan इनवर्स x प्लस के और माइनस cot इनवर्स x प्लस के डैश। द सेम रीजन tan इनवर्स x में भी रिटेन π/2 माइनस cot इनवर्स x, तो हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, or I can say derivative of minus cosec inverse x is 1/x under root x square minus 1. Means here dx is greater than 1. X is greater than 1 or less than -1. So integral of 1/x under root x square minus 1 is either sec inverse x plus k or minus cosec inverse x plus k dash। तो 3 more फार्मूला। तो टोटल कितने फार्मूले हमने इस डिफिनीशन से ही निकाल लिए? 17। 4 एक्सपोनेंट में e पावर x का इंटीग्रल, a पावर x का इंटीग्रल, 1/x का इंटीग्रल माने x पावर -1 का इंटीग्रल, एज वेल एज x पावर n का इंटीग्रल। 4 एक्सपोनेंट में। सेपरेटली याद रखें 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल में हाउ द 10 ऑल द 6 साइन x का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का। these 6 दो प्रोडक्ट में sec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का, दो प्रोडक्ट में sec x tan x का, cosec x cot x का। तो 6 4 10
और 3 हमने इनवर्स में निकाले हैं, ये देख रहे हैं। ऑल दी 17 आर हियर। थोड़ा नीचे तक आएगा, उसको देख लेंगे, ये आ जाएंगे, पूरे 17 फार्मूले आपको मिल गए। अब हम इतने ही और फार्मूले तुरंत बन जाएंगे। वो कैसे, ये आप देखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी को टी लिया, एफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी, टी को फिर से डिफरेंशिएट किया, ए टी माने ए एक्स प्लस बी को। तो इसका करेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल कैसे बनेगा? ए कांस्टेंट है, इस तरफ आ जाएगा, माने 1/a। सो आई कैन से इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी इज ए 1/a means x is replaced by its linear term, x is replaced by linear term, ये ध्यान दें, not anything, x is replaced by its linear term only। यदि x को हम लीनियर टर्म से रिप्लेस कर दें तो लीनियर टर्म में जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, देख रहे हैं ना? मीन्स आई कैन से डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन तो नोन था, इसके करेस्पॉन्डिंग देखिए लिख रहा हूं। एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? ए एक्स प्लस बी से, लीनियर टर्म से, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। देन इट्स इंटीग्रल इज उस लीनियर टर्म का पावर एन प्लस 1 मीन्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। क्या बढ़ेगा? 1/a। तो 1/a के बजाय हमने ये यहां मल्टीप्लाई कर दिया। x पावर -1 का इंटीग्रल था log x, means I can say derivative of ax plus b to the power -1 means 1 upon ax plus b का इंटीग्रल log, तो 1/a आएगा log ax plus b। डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax प्लस b 1/a e to the power ax plus b। Since derivative of e power x is e power x, x is replaced by ax plus b, its linear term, then 1 upon x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा 1/x plus b। डेरिवेटिव ऑफ ए टू दी लेमडा, ए को हम लेमडा लिख दे रहे हैं, लेमडा टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इज 1/a। यहां तो ए ही रहेगा, हाँ ठीक, हम डायरेक्ट इंटीग्रल ही लिख दे रहे हैं। ओके सारी भाई, ये सब तो वो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा भाई बीच का, डेरिवेटिव वाला नहीं लिख रहा हूं, बता दूंगा मैं कहा। वन मोर, लेमडा टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1/a लेमडा टू द पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन log ऑफ लेमडा।
Why? Derivative of lambda to the power x is lambda to the power x upon log of lambda. x को रिप्लेस हुआ है x प्लस बी से, 1 बाई ए एक्स्ट्रा आ गया, नथिंग। तो जैसे डेरिवेटिव में आप याद किए होंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव ए कास ए एक्स प्लस बी, तो हम ए के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड होगा, नथिंग टू बी देयर। यहां 1 बाई ए, ठीक, 1 बाई ए है। ओके, हम सभी नहीं लिख रहे हैं भाई, ऑल द 17 आई एम नॉट गोइंग टू राइट, ओनली आई टू रीड आउट। इसको देखेंगे और आगे चलो, और आगे थोड़ा सा, हाँ यहां से देखिए 25 से देखेंगे आप, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल 1 बाई ए कास ए एक्स प्लस बी विद माइनस साइन, कास ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल 1 बाई ए साइन ए एक्स प्लस बी, tan ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल 1 बाई ए लॉग सेक ए एक्स प्लस बी, काट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल 1 बाई ए लॉग साइन ए एक्स प्लस बी, कोसेक ए एक्स प्लस बी, ऑल द माने 17 मोर आ जाएंगे फार्मूले। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी विल डू द क्वेश्चन। सबसे ज्यादा थिंकिंग स्किल यहीं पर इन्वॉल्व है। देखिए डायरेक्ट तो कभी पूछता नहीं है कि सीधे सीधे फार्मूला पूछे आपसे, इवन दो 1 मार्क्स के में भी क्वेश्चन जो होगा कम से कम थोड़ा सा थिंकिंग इन्वॉल्व तो रहती है। ऑलवेज आई शुड फाइंड फ्रॉम दिस बेसिक ऑन डायरेक्ट फार्मूला, बेसिस ऑन डायरेक्ट फार्मूला मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आइदर इन 1 मार्क और 2 मार्क्स जरूर रहेगा 100%। लेकिन ये कंफ्यूजन अब होता है, जब डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो अलग था, इंटीग्रल में आए तो पता चला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स है, इंटीग्रल भी आप लिखा है कास एक्स, जबकि इंटीग्रल उसका माइनस कास एक्स है। तो थोड़ा हम रिवर्स प्रोसेस जरूर सोचें, जब भी हम थिंकिंग करें, देखें कि क्या इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है कि नहीं। ओके, तो अब देखिए मैं थोड़े क्वेश्चंस की बात करूंगा, है क्या। जैसे क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर की बात करूं मैं, तो दो तो स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस काट एक्स। बाकी 4 के स्क्वायर की बात हम देखें, कहीं यदि इंटीग्रैंड आपको tan स्क्वायर एक्स मिल जाए तो तुरंत इसको सेक में बदल दें। ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सो tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स अब इंटीग्रेट कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आया tan एक्स, 1 का इंटीग्रल आया एक्स माइनस प्लस कांस्टेंट, माने कांस्टेंट का इंटीग्रल, कई बार यू आर कंफ्यूज, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट यू हैव टू राइट 0, अरे भाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो आप समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 मींस इंटीग्रल ऑफ 0 इज ए कांस्टेंट, derivative of kx is a k, so I can say integral of k is kx plus k dash, माने कांस्टेंट का इंटीग्रल kx होगा। वैसे 1 को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, x पावर 0, k बाहर रहेगा, यहां x पावर n का फार्मूला लगा, x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज kx। हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे बार बार, यहां जरूर बता देना चाहता हूं कि कांस्टेंट का इंटीग्रल kx होगा, तो 1 का इंटीग्रल 1 कांस्टेंट है 1x होगा, सो आई हैव रिटन x ओनली। Orally so many times I to ask
Integral of 0. अरे सर 0. No. Integral of 0 is a constant, any one constant, any real number. K may be 1, may be 5, may be 10, may be 100 or anything. So integral of 0 is a constant. This is a very important point. And integral of constant is a linear term, that is kx plus k dash. In the similar way, cot square x. तुरंत चेंज कर दीजिए इसको, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस काट एक्स माइनस एक्स प्लस के, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस काट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, 1 का इंटीग्रल एक्स, और कांस्टेंट लगेगा ही लगेगा। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, देखिएगा ऐसा बहुत यूज होते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, अभी ये तो सेक स्क्वायर एक्स में बदलेगा नहीं, 1/, में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो मुश्किल हुई। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स को हम cos 2x में बदल दें। देखिए ये फार्मूला बहुत यूज होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x एंड 2 cos स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस cos 2x। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था ये। यहां से आता है cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज वेल एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेल नोन फार्मूला है। ट्रांसफॉर्म करके देख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा। ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो ये स्क्वायर टर्म का देख रहे हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 आ जाएगा, तो 1 बाई 2 इज ए कांस्टेंट, 1 माइनस cos 2x, 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x माइनस cos ax, 1 बाई ए साइन ax, cos ax का इंटीग्रल 1 बाई ए साइन ax, दैट इज 1 बाई 2 साइन 2x। यदि साइन 2x को लिख दें 2 साइन x cos x कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 x माइनस साइन x cos x एंड प्लस के, तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज 1 बाई 2 x माइनस साइन x cos x प्लस के। इन द सिमिलर वे cos स्क्वायर एक्स, देखिए केवल साइन का चेंज आएगा, इसमें प्लस हो जाएगा वहां, 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2x x प्लस हाफ साइन 2x, x प्लस साइन x का। अब क्या हो, ये बार बार यूज होंगे तो याद नहीं रखना है, लेकिन हम इतना जाने कि भाई tan स्क्वायर एक्स जहां आया वहां तुरंत सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बदलेंगे, जहां cot स्क्वायर एक्स आया वहां कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बदलेंगे, जहां साइन स्क्वायर एक्स आया वहां हाफ 1 माइनस cos 2x लिखेंगे, जहां cos स्क्वायर एक्स आया वहां हम हाफ 1 प्लस cos 2x यूज करेंगे। इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होगी, देख रहे हैं पूरी तो अब क्या हो गया, ऑल द 6 स्क्वायर वाले भी आपके सामने आ गए इंटीग्रल, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, और सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट है ही। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x एंड इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस cot x। बेसिक 2 ही थे, लेकिन 4 हमने निर्धारित कर लिए। तो
अब आप देखें कि पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल के नोन हैं, पूरे 6 के स्क्वायर के नोन हैं। ओके, इसके आधार पर हम क्यूब की भी बात करें, उसके कई मेथड आएंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको कि पहले जितना बता चुका हूं उसी के बेसिस से क्यूब का भी निकालूंगा, साइन क्यूब एंड कास क्यूब का। क्योंकि पावर में तो मेरे पास x पावर n माने केवल x रहे या लीनियर टर्म रहे तभी यूज हो सकता है। तो हम थिंक ओवर करें कि साइन क्यूब कहाँ आता है। साइन 3x में देखिए साइन क्यूब x आता है। साइन 3 थीटा इजे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इज ए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यदि ट्रांसफॉर्म कर दूं तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, और ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब एक्स को लिख सकता हूं 1/4 कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रल से बाहर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। वन बाई फोर कांस्टेंट, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कास एक्स, तो माइनस 3 कास एक्स प्लस हो जाएगा ये 1/3 कास 3x प्लस के। देखा ना, यानी समझिए याद नहीं रहा कि कैसे स्टार्ट होता है, हम इसको तुरंत मल्टीपल एंगल में बदल देते हैं। पावर्स को इमीडिएटली मल्टीपल एंगल में बदल लेंगे। साइन एक्स का फार्मूला कास एक्स के फार्मूले लग जाएंगे। कास क्यूब की बात करूं यदि, फिर सोचें कास क्यूब कहां आता है। कास 3 थीटा का फार्मूला देखिएगा, कास 3 थीटा इज 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। तो यहां से आया 4 कास क्यूब थीटा इज, यही रहने दिया, ये इधर आएगा कास 3 थीटा प्लस 3 कास थीटा। तो दिस इज 1/4 कास 3x प्लस 3 कास x 1/3 साइन 3x कास ax का इंटीग्रल 1/a साइन ax प्लस 3 साइन x एंड प्लस के। साइन क्यूब एक्स भी आ गया, कास क्यूब एक्स भी आ गया। साइन पावर 4x, अब देखिए साइन पावर 4x आ चुका है। एक आध सेट में साइन 4x था, दूसरे सेट में कास 4 पावर 4x था। ये 2 मार्च में क्वेश्चन आया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स तो मुझे मालूम है, तो इसे क्या करें 1/4 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 2 का भी स्क्वायर है तो 4 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स का साइन 4। क्यों 2 साइन स्क्वायर एक्स किया? 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कास 2x, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये बना 1/4 इंटीग्रल ऑफ
1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab दैट इज 2 cos 2x। ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा अभी, स्क्वायर फिर आ गया। तो स्क्वायर का भी बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, लेकिन यहां 2 नहीं है, कोई बात नहीं 1/2 2 कर देंगे, तो 1/8 कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई, यहां 2 cos स्क्वायर 2x बन गया, उसको 1 प्लस cos 2 थीटा किया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 4x माइनस 4 cos 2x। अब इंटीग्रेट पूरे टर्म हो जाएंगे, इट इज 1/8 इंटीग्रेट किया, 2x प्लस x या 2 प्लस 1 पहले 3 कर लिया, 3x 3 का इंटीग्रल 3x, cos ax का 1/4 sin 4x माइनस 4 का 1/2, यहां 1/8 sin ax तो 1/2 तो 2 बनेगा, 2 sin 2x प्लस के, ये आ गया इंटीग्रल ऑफ cos पावर 4x इज 1/8 3x प्लस 1/4 sin 4x माइनस 2 sin 2x प्लस के। In the similar way, cos power 4x 1/4 2 cos स्क्वायर x होल स्क्वायर वन प्लस cos 2x होल स्क्वायर वन प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। केवल प्लस माइनस का अंतर है दोनों में। फिर अभी cos स्क्वायर है तो 1/8 कर लिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर 2x, इसे लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x। Now it should be integrated. 2 plus 1 is 3, 3 का इंटीग्रल 3x प्लस 1/4 sin 4x प्लस 4 into 1/2 तो 2 cancel, 2 to the 4, 2 sin 2x प्लस ऑल दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों आएगा तो 1 मार्क में, ये दोनों आएगा तो 2 मार्क्स में। इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 4x एंड cos पावर 4x। अदर्स पावर्स कैसे आएंगे वो टेक्निक में आएगी, लेकिन 4 तक को तो हम डायरेक्ट करें। देखिए ये 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 प्लस cos एक्स, 1/1 माइनस cos एक्स। एक्स में भी रिप्लेस है 2x 3x 4x आल्सो। एक्स में से एक्स प्लस बी बता चुका हूं कि एक्स को यदि ax प्लस बी लीनियर टर्म ला दें तो 1/a केवल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, नथिंग टू बी देयर।
आप इसी के प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई। देखिए यदि 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आया, नीचे आया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई एम नॉट राइटिंग, दैट इज ए कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, वन माइनस साइन एक्स से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख रहे हैं सीधे आ गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बिकम सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बिकम, अभी लिया भी था मैंने कि इट कम से सेक एक्स टाइम एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, दैट इज सेक एक्स टाइम एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स, बताया था प्रोडक्ट में बेसिक डायरेक्ट फार्मूले, तो ये आ गया tan एक्स माइनस सेक एक्स। साइन कास में बदलेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। इसको माइनस बाहर लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये बन जाता है। क्योंकि साइन एक्स माइनस 1 ज्यादातर लिखा नहीं जाता, साइन एक्स की वैल्यू हरदम लाइन बिटवीन -1 to 1 होती है, इसलिए बेटर है कि 1 माइनस साइन एक्स हम लिखें, इसलिए माइनस बाहर ले दिया। यदि यहां 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए केवल चेंज यही आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स ही, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स, इट कम्स tan एक्स प्लस सेक एक्स। ओके, इसमें यदि 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। जब मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा था तो बता भी दिया था आपको, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स काट एक्स, 1 बाई साइन एक्स दैट इज कोसेक एक्स काट एक्स माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, दिस कम्स माइनस काट एक्स माइनस काट एक्स, ये प्लस हो जाएगा प्लस कोसेक एक्स प्लस, दैट इज 1 बाई साइन एक्स, दिस इज cos x बाई साइन एक्स, माने 1 माइनस cos x अपॉन, यहां प्लस आ जाएगा केवल, और कोई चेंज नहीं आएगा। 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स काट एक्स। दिस कम्स माइनस काट एक्स माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉमन कोसेक एक्स प्लस काट एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स cos x बाई साइन एक्स, 1 प्लस cos x बाई साइन एक्स। यू आर गेटिंग दिस वन? तो दिस वाज, ये दोनों सेम है, देख सकते हैं कि भाई माइनस का अंतर आएगा केवल। अब हम इन दोनों को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, कहीं कहीं लोग ऐसे करते हैं, 1 प्लस cos थीटा इज ए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos x इज ए
2 cos square x by 2, that is 1 by 2 sec square x by 2, 1 by 2, इसका आ जाएगा 2 tan x by 2, 1/1 by 2, यही छूटता है। ये स्टेप ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल 1/1 by 2, not only tan x by 2, 2 cancel, finally it comes tan x by 2, 1 प्लस cos x को ऐसे भी किया जा सकता था। अब कहेंगे नहीं साहब ये तो इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। 1 माइनस cos x को 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दें, sin x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिख दें। देख रहे हैं, एक 2 कैंसिल, sin x बाई 2 कैंसिल, आ जाएगा sin x बाई 2 upon cos x बाई 2, दैट इज tan x बाई 2। सिमिलर वे यहां आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/2 sin स्क्वायर x बाई 2, दैट इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x बाई 2, cosec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल -2 cot x बाई 2, फिर यही 1/8। अक्सर मैं देखता हूं कि ये 2 छूटता है स्टूडेंट्स का, फिर 2 कैंसिल, फाइनली इट कम्स माइनस cot x बाई 2 प्लस c। ये भी वही है, 1 प्लस cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, sin x हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, कैंसिल हो गया cos x बाई 2 और 2 दोनों, केवल बचा cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, दैट इज ए cot x बाई 2, तो माइनस cot x बाई 2 प्लस c। तो इन दोनों का तो ठीक है, ऐसे ही इसको भी उसी में बदल सकते थे हम, sin x को लिख देते cos पाई बाई 2 माइनस x, sin x को लिख देते cos पाई बाई 2 माइनस x, और तुरंत आ जाता 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन उसमें पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आएगा। जैसा ऑप्शन रहे उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो आपने देखा, अभी हम लोग डिस्कस किए केवल डायरेक्ट फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव से कि इंटीग्रल इज नथिंग एल्स, इट इज अ एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। एफ एक्स प्लस के का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, इसलिए एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स प्लस के आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डू टू दिस वन। ओके, थैंक यू। टुमारो वी विल टेक सम मोर क्वेश्चन एंड वी विल स्टार्ट टेक्निक ऑफ इंटीग्रल। अभी डायरेक्ट हम इंटीग्रल पढ़ाए, अब टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे।